Hello, it is January the 16th and I am Jagjit, welcoming you all to the 33rd episode of Weekly Takes from New York. We'll start today's episode with news of USA. We have a lot to talk about. And then we move over to our segment of some little known but unknown facts about New York City. From there we go to India to discuss some important news of the present week. Much has been going on. And later an update on Sushant Singh Rajput murder mystery. And then we'll talk about the history of Kashmir, the heaven on earth, and learned facts skipped by our own historians. And last but not the least, we'll talk about the happenings within the Congress party and its future in the present circumstances. A big thank you all for liking my program. The last episode was watched by over 17,000 viewers. Many of you have subscribed, and those of you who have not till now, press the subscribe button and also the bell icon to get informed about the next episode at the earliest. Let's just do it. Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Vanakkam. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York today morning when the mercury reads 6 degrees Celsius. Let's begin. News of USA. We all learned and do believe that the President of the United States is the most powerful person on planet Earth. But social media tells us not true. As was shown last week when President Trump was shut up by social media barons. Is it what we call democracy or freedom of expression? Is this why people came to the United States on Mayflower? Share your thoughts, America. In the name of whatever, are we not giving fodder to dictatorial regimes all over the world to follow suit? Can we then say that they are wrong? After all, one person's freedom fighter is always another person's terrorist. It depends which side are you on. Twitter CEO Jack Dorsey on Wednesday defended the company's decision to ban Donald Trump from its platform, effectively snatching away the US president's megaphone, but at the same time acknowledged that the power of social media platforms to censor a president sets a dangerous precedent. And yes, my worry as a social scientist comes out of this thought, a dangerous precedent. Think, America. Over the last month, I have been talking to various cross-section of people from all different states and learned the following. Number one, people did not vote for Biden out of love but voted against Trump. People by and large were happy with the handling of economy by President Trump. And all say that had it not been perhaps for Corona, President Trump would have easily won the elections. And even the Biden administration has acknowledged the economy part of Trump. Otherwise, the new stimulus proposal, economic proposal, whatever you may call it, would not have included $2,000 stimulus for Americans, which initially Trump had proposed. A humble appeal to people in power. It is time the nation is healed. In schools, we read Newton's law of motion, which states every action has an equal and opposite reaction. Our nation is divided. Let's not divide it further by vengeful actions. Let's strive to move forward and show the world how great a nation we are. Let us lead by showing maturity and unity. After all, 72 million people voted for President Trump. Now, moving over to our section of some interesting known but unknown facts about New York City. Did you know that virtually every skyscraper built in New York City is the result of hard work and fearless attitude of Mohawk
iron workers? The iron workers belonging to this tribe have an innate talent to withstand pressure and complete their task while working on great heights. Did you know that the New York City subway has the most stations in the world? 468. Shanghai and Beijing come in second and third respectively in regards to number of stations. Beijing has the highest ridership and the longest route length. And to the answer to last week's quiz regarding the Brooklyn Bridge, the answer was correctly given by Jawahar Singh, an avid subscriber and participant. Thank you. And to all my fellow viewers, do you know which state in the United States produces the most apple? Rank 3 states in the quantity of apples produced. Participate. Write your answer in the comment box and you will have a special mention in the next episode. अब चलें भारत की ओर। पहले कुछ मुख्य समाचार। Today, January the 16th, India launched the world's largest COVID-19 vaccination drive. देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शनिवार सुबह से शुरू हो गया और हमेशा की तरह सरकार के हर काम को एक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा वैक्सीन पर सवाल खड़े किए गए। पहले सीएए पर विरोध, फिर किसान बिल पर आपत्ति और अब वैक्सीन पर राजनीति। यह संकेत है 2024 में सिमटने का। बहरहाल कांग्रेस के सवालों के बीच भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि यदि इससे साइड इफेक्ट होता है तो फिर मुआवजा कंपनी देगी। देश पर गर्व होने के बजाय देश के वैज्ञानिकों पर की क्षमता पर सवाल उठाना यह कांग्रेस पार्टी का धर्म है। हेल पप्पू। इधर कृषि कानून पर गतिरोध पहले की तरह बरकरार है। द 9th round of talks between the government and farmer unions over the farm laws again failed to break the deadlock on the issues of repeal of the laws and the MSP Act. The government is steadfast that the laws cannot be taken back. The next meeting will take place on January the 19th. This was the first meeting after the Supreme Court appointed a committee to resolve the deadlock. Meanwhile, a secessionist organization, Seeks for Justice, based in the United States, has given a call to the farmers at Singhu border to hoist Khalistani flag on Republic Day at India Gate and get a reward of $250,000 and has at the same time assured all logistical support to take out a parallel rally in defiance of Republic Day parade. Kisan unions must come forward and denounce such organizations which try to divide India, and for them I have a humble suggestion. Why don't you try your luck and antiques in Canada, where the government is or the government may be willing. Hashtag Khalistan in Canada, that is the talk for today. And for this reason, I have been telling from the very beginning that this is not a farmers' agitation. It has always been political. अब अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का। The Narcotics Control Bureau, the NCB, is tightening its noose with raids and arrests on several highly connected people. Latest in this series is the arrest of son-in-law of a powerful minister, Nawab Ali, of the Nationalist Congress Party, who is part of the Maharashtra government. I have continually been telling that the CBI is in the process of creating a watertight case. Everything is being considered, all concerned have been questioned and are being questioned, and a digital evidence creation के आधार पर
केस पर काम चल रहा है। समय लगेगा पर न्याय मिलेगा। बी पेशेंट इज ऑल आई कैन टेल यू एट दिस टाइम। अब चलें धरती के स्वर्ग कश्मीर की ओर। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा किया था देवाधिदेव महादेव का और विभिन्न शैव मत का। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख शैव संप्रदायों के बारे में और चर्चा करेंगे कश्मीर के प्रतिभिज्ञा शैव सिद्धांत की। हर मत का उद्देश्य यही होता है कि मानव बंधनों से मुक्त हो और अज्ञान से छुटकारा पाए, वह अज्ञान जो मानव का समग्र विकास नहीं होने देता है। हमारी इच्छा है अविद्या या अंधकार से मुक्ति पाना, क्योंकि यह आत्मा के प्रकाश को अंधकारावृत किए रहती है। शैव मत के 4 संप्रदाय बताए गए हैं: शैव, पाशुपत, कालदमन या कालामुख और कापालिक। इनमें से 2 शिव के सौम्य रूप को स्वीकार करते हैं और 2 शिव के भयंकर या रौद्र रूप को पूजते हैं। इन्हीं के धार्मिक सिद्धांत और साहित्य को शैव सिद्धांत कहा जाता है। इनमें से 2 वैदिक हैं और 2 अवैदिक। 11वीं शताब्दी में वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। इसका दार्शनिक आधार अद्वैतवाद या नॉन ड्युअलिज्म है। लिंगायत और कापालिक संप्रदाय अपनी साधना में तंत्र का प्रयोग करते हैं। इनके आचार शिव के घोर रूप के समान होते हैं, जैसे मनुष्य के खप्पर को साथ रखना, उसमें भोजन करना, शमशान में निवास करना, शव के भस्म को अपने शरीर में लगाना, तंत्र विधि से पूजा का अनुष्ठान करना आदि। कालामुख साहित्य में यह कहा जाता है कि इससे हर प्रकार के लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। धीरे धीरे यह मत शैव मत से दूर होता गया और शाक्त मत के करीब होता गया। पहले शैव मत में 2 ही संप्रदाय थे, पाशुपत और आगमिक। फिर इन्हीं के कई उप संप्रदाय हुए: पाशुपत मत, लकुलीश मत, कापालिक मत, नाथ संप्रदाय, गोरखपंथ, रसेश्वर मत इत्यादि। आगमिक शैव मत की प्रधान शाखाएं थी तमिल शैव, कश्मीर शैव और वीर शैव। शैव मत महाभारत और रामायण काल तक माहेश्वर संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। सौम्य रूप की पूजा वैदिक रीति से होती थी और रुद्र रूप की पूजा अवैदिक तरीके से। सौम्य रूप में पूजन, आराधना, श्रवण, कीर्तन और वेदों में लिखित शिव मंत्रों द्वारा किया जाता था। ये शिव भक्त शिव तिलक लगाते हैं, शाकाहारी होते हैं। कापालिक लोग अवैदिक तरीके से शिव की आराधना करते हैं और अपने चिन्हों में कंठहार, हड्डियों की माला, लोहे के आभूषण और भस्म, यज्ञोपवीत और शिव के दिगंबर रूप में रहते हैं। इसमें कठोर अपरिग्रह और संसार त्याग दिया जाता है। सिद्ध नागा साधु शिव के सदृश ही समझे जाते हैं। इन्होंने शिव के समान ही काम वासना को विजित किया होता है। इनकी दृष्टि संसार के हर अच्छे बुरे वस्तु को एक ही भाव से देखती है। मृत भी इनके लिए समान है और जीवित भी। नग्न रहने के पीछे इनका यह सिद्धांत है कि शिव स्वयं दिगंबर हैं और आकाश या व्योम ही उनका वस्त्र है। देखने वाला संसार जो वासना और अज्ञानता से युक्त है, वह इस नग्नता में लज्जा देखता है। जब 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म अपने पतन की पराकाष्ठा पर था और उसमें व्यभिचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था, तब शंकराचार्य ने इसे उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। उस समय यही नागा संप्रदाय उनकी सेना थी। नागा साधुओं की घोर भयंकर सेना पहले किसी गांव या क्षेत्र में पहुंचती थी और उस गांव के प्रमुख बौद्ध को अपने गुरु से शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारती थी। इस भयंकर त्रिशूलधारी, भस्म, जटाजूटधारी सेना को देख कर अहिंसक बौद्धों के होश उड़ जाते थे और गांव के गांव एक ही दिन में शरणागत हो जाते थे। उन्हें फिर से सनातन धर्म में लाया जाता था। उसके बाद फिर बौद्ध गुरुओं को शंकराचार्य वाद विवाद में पराजित करते थे। अब हम कश्मीर के शैव मत की बात करते हैं। वसुगुप्त को कश्मीर की शैव परंपरा का प्रणेता माना गया है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने शैव मत का गठन किया था। इनके प्रमुख शिष्य कल्लट और सोमानंद थे, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार 36 तत्व या एलिमेंट्स की प्रधानता दी गई है। कश्मीरी शैव मत के 4 अंग हैं: क्रम,
कुल, स्पंद और प्रत्याभिग। अभिनवगुप्त का तंत्रालोक इसका प्रधान ग्रंथ है। प्रत्याभिज्ञा का शब्द का अर्थ है साधक अपनी जानी हुई वस्तु को फिर से जान ले और उसमें हर अद्वैत भाव यानी नॉन डुअलिज्म में द्वैत यानी डुअल यानी ब्रह्म में जीव और जीव में ब्रह्म का देखा जाना, हर निर्गुण या गुण रहित भाव और तत्व में सगुण यानी गुण और दोष की कल्पना की जाती है। कश्मीरी शैव मत का दर्शन यही कहता है कि सिर्फ ज्ञान से या सब में ब्रह्म भाव अनुभव कर लेने से ही मोक्ष या निर्वाण नहीं मिलता है और न ही केवल महादेव की भक्ति करने से महादेव को पाया जा सकता है और न ही बार बार धरती पर जन्म लेने की बाध्यता खत्म हो सकती है। जब ज्ञान परिपक्व होगा तब वह खुद ही भक्ति बन जाएगा और जब भक्ति में से द्वैत भाव यानी भक्त और भगवान एकाकार हो जाएंगे तब अद्वैत अपने आप ही आ जाता है। भक्ति और ज्ञान दोनों चरम सीमा पर पहुंचने से हर कारण और कार्य के पीछे का महाकारण ज्ञात हो जाता है और मोक्ष हासिल हो जाता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत का यही विशेष मत है जिसमें हर ज्ञात वस्तु को फिर से एक निर्दोष, गुणातीत और सगुण दोनों रूप में जान लिया जाता है। प्रत्याभिज्ञा यानी पहले से जानी वस्तुओं को जानना। इसमें यह कहा जाता है कि सृष्टि अजन्मा और ब्रह्म का प्रकटीकरण होने के कारण संसार में व्यक्ति इसमें नया कुछ भी नहीं जोड़ सकता है क्योंकि पहले से भिन्न कुछ भी नहीं है। विश्व में शिव की सत्ता एकमात्र है जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह अनियंत्रित स्वातंत्र है। उनकी अन्य भी विशेषताएं हैं जैसे सर्वव्यापकता ओमनी प्रेजेंस, निकाराकता नित्यता इटर्निटी और इसके साथ वह स्वच्छंद नॉन डिपेंडेंट भी है। वह ज्ञाता यानी ज्ञान जानने वाला और ज्ञेय यानी जानने योग्य भी है। प्रतिभिज्ञा शब्द का तात्विक अर्थ है साधक अपनी जानी हुई हर वस्तु को फिर से जान ले। इसमें हर अद्वैत भाव से द्वैत भाव को और हर द्वैत में अद्वैत भाव को देखा जाता है। हर निर्गुण या गुण रहित भाव में सगुण यानी गुण दोष की कल्पना की जाती है। कश्मीरी शैव मत का प्रतिभिज्ञा का सरल भाव यही है, सिर्फ ज्ञान से या सब में ब्रह्म भाव अनुभव कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और नहीं केवल भक्ति या समर्पण से मोक्ष पाया जा सकता है। ज्ञान में अहंकार आ सकता है और भक्ति में अंधविश्वास, इसलिए दोनों के सुयोग्य और समुचित मिश्रण से ही मोक्ष संभव है। जब ज्ञान परिपक्व होगा तब उसमें भक्ति खुद आ जाएगी और जब भक्ति उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तो हर वस्तु का ज्ञान खुद ब खुद हो जाता है। दोनों अवस्था में जब कारण के पीछे का महाकारण ज्ञात हो जाएगा तब माया और अज्ञान का हर आवरण स्वयं हट जाता है। कश्मीर के शैव सिद्धांत को त्रिक यानी ट्रायंगुलर कहा जाता है। इसमें तीनों परम सत्य यानी ईश्वर, परम सत्य और प्रकृति तीनों को ही मुक्ति का आधार माना गया है। उनकी अन्य भी विशेषताएं हैं जैसे सर्वव्यापकता, नियतता, निकाराकता और इसके साथ वह स्वच्छंद भी है, वह ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी, यही यानी जानने वाला और जानने योग्य भी। शिव समस्त पृष्ठभूमि की यथार्थ सत्य है। यद्यपि वह निराकार है किंतु उसकी शक्ति के असंख्य रूप हैं जिनमें मुख्य है चित्त, बुद्धि, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसी के द्वारा वह संसार का कार्य व्यापार करती है। अभिनवगुप्त के अनुसार कश्मीरी शैव दर्शन में मुक्तात्माओं के 3 वर्ग हैं। एक वो जो सर्वोपरि सत्ता में समा गए, दूसरे वे जो सगुण हैं और व्यक्त रूप से उसके साथ संयुक्त हैं और तीसरे वे जो मुक्त से हो गए हैं पर शरीर को छोड़ा नहीं गया है। जब इस प्रकार द्वैत की सत्ता समाप्त हो जाती है और जब जीव माया से ऊपर उठ जाता है और माया उसके नियंत्रण में आ जाती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जैसे जल में जल, दूध में दूध, बहुत सरल और समझने वाली भाषा में हमने आपको कश्मीर के शैव यानी प्रतिभिज्ञा सिद्धांत का वर्णन करने का प्रयास किया है। यह सिद्धांत शैव मतों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए हिंदू धर्म का यह एक विशेष अंग है। अगले अंक में हम कश्मीर के इतिहास की चर्चा पर पुनः लौटेंगे और जानेंगे आगे की घटनाओं को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भमं भवानी सहितं नमामि।
आज के लिए कश्मीर से इतना ही। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ का निशान, पर यह किसी को भी पता नहीं कि दाएं हाथ का है या बाएं हाथ का। मेरे एक मित्र ने कहा सेक्युलर हाथ का है, पर दिक्कत वहां नहीं है। मुश्किल यह है कि दाएं को पता नहीं कि बायां क्या कर रहा है और बाएं को पता नहीं कि दायां क्या कर रहा है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पर उसे अगले ही दिन हटा दिया गया क्योंकि उसने सोनिया जी के शान में गुस्ताखी भरे कसीदे पढ़े थे। और उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पार्टी से लोगों को जोड़ने की बजाय पिंकी से त्रस्त होकर रायबरेली से भी पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। जय कांग्रेस। पप्पू डज नॉट नो व्हाट पिंकी डज and both do not know what the mother wants. Mother, being a traditional Italian mother, wants her son to sit on the throne. पर पप्पू है कि मानता ही नहीं। A party which declares to be democratic, where voices are heard, nobody is ready to hear the voice of Masoom Pappu, who is at the moment the best entertainer. Let the poor guy choose his own career. अब बच्चे की जान लोगे क्या? आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के आगे के इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के और कहानियों की, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की। क्या होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का? जानेंगे भारत अमेरिका के रिश्तों के बारे में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हां, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।